हेलो वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी। मैं हूं जेमी और हम आज रिकैप करेंगे पहला टी20 मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच ईडन गार्डन्स में। मैच दोस्तों ऐसा रहा, मनोरंजन था पर इतना हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं साबित हुआ ईडन गार्डन्स जैसे कि हम लोग काफी काफी लोग समझ रहे थे। इट वाज अ rather one sided match because India's fielding and bowling were just so terrific. I mean, Varun Chakravarti once again proving why he is the form spinner when it comes to T20 crickets. खासकर ईडन गार्डन्स में 3 wickets, economical, struggling England batsman, clueless as to how to play him. He comes on, he gets massive wickets. He has the batsmen all over the place. We spoke इस मैच के प्रीव्यू शो के बीच के कैसे इंग्लैंड की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट फंस सकती है, लेकिन भाई इतनी खराब बैटिंग, मतलब मैं क्या कहूं। एक तरफ जॉस बटलर ने कुछ 60 मारे, उसके बाद सिर्फ हैरी ब्रुक ने 17 बनाए। कोई भी इंग्लैंड बैट्समैन ईडन गार्डन्स के पिच पर टिक नहीं कर पाया क्योंकि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल once again economical 2 for 22, and even Ravi Bishnoi did not get wickets but he bowled so many dot balls, just gave the 2 boundaries. His 4 overs went for 22 runs, and that is also a big reason why England, with some brilliant fielding from India, 3 catches to Nitish Kumar Reddy, just saw England bowled out for 132 20 over के अंदर over 130 what 132 133 सॉरी की चेस में। रियली नो प्रॉब्लम। संजू सैमसन ने जोरदार शुरुआत करी। हाँ, जोफ्रा आर्चर के पेस में वो आउट हुए, सूर्यकुमार यादव डक पे आउट हुए। उनका खराब फॉर्म चल रहा है बैट के साथ बिकॉज जोफ्रा आर्चर वाज जस्ट टू क्विक फॉर देम। बट वो लड़का अभिषेक शर्मा, इतनी हमने चर्चा करी कि ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि जायसवाल जरूर आएंगे और जब जायसवाल आएंगे और संजू सैमसन के साथ जुड़ेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा अभिषेक शर्मा को 11 के अंदर अपनी जगह कायम करने के लिए। But he blasted what 79 of 34 odd balls, so many fours, so many sixes. He looks so good, so devastating when he bats like this. Had no issues against pace, had no issues against spin. And let's hope, क्योंकि वो इतने बड़े टैलेंट है अभिषेक शर्मा, कि इस पूरे सीरीज में वो फिर से ऐसे रन मारे ताकि वो रेलेवेंट रहे जब सिलेक्टर्स अगली बार 6 महीने के बाद तकरीबन एक और टी20 आई स्क्वाड पिक करेंगे। So overall, like I expected, a rather facile win. I'm sticking with my prediction 4-1 to India. England had just no clue on how to bat on this track. It literally was Joss Butler on one side and all the other batsmen. Look at the way Livingston got out. Look at the way Harry Brook got out. Look at the way Jacob Bethel got out. These kind of batsmen, yes, they're ball batsmen. Yes, they're going to come out and try and intimidate and dominate the सामने वाली टीम। लेकिन सामने वाली टीम जब इंडिया है इस वैरायटी के साथ, चलिए मोहम्मद शामी आज नहीं खेले, बहुत दिनों तक हम चर्चा करते आ रहे हैं कि शामी खेलेंगे क्या करेंगे। Forget Shami right now. India had a plan. They wanted to attack England with spin. England on the other hand, उनका टारगेट था कि बस पेस डालते रहेंगे हम, और आर्चर को छोड़ के बाकी सारे पेस बॉलर्स आज पिटे, उन्होंने मार खाए। Look at the way that India went in. Suryakumar Yadav, what a captain. He picks 3 spinners and all 3 spinners. मेरे ख्याल से 12 ओवर मिलाकर इन तीनों स्पिनर्स ने 75-70 के आसपास, शायद 70 से कम रन दिए होंगे बिकॉज Chakravarti, what, 3 for 17 or something like that. Akshay Patel, 2 for 22, and then Bishnoi, 2 for, or none for 22. Again, that's about 60 odd runs. 12 over में. The choke, make no mistake, जो choke hold apply किया आज इंग्लैंड के rather silly, फालतू बल्लेबाजों पर, वो आया स्पिन द्वारा. And once again, Arshdeep Singh, have to mention how special a bowler we're talking at. He's a brilliant न्यू बॉल बॉलर। इतनी बार मैं उन्हें देख चुका हूं कि पहले ओवर में वो विकेट निकालते हैं, और आज उस ईडन गार्डन पिच पर this didn't look like it was Eden Gardens. This looked like it was Barbados, the way that he got that ball to Phil Salt to spit up. उनके 2 विकेट पावर प्ले के अंदर उन्होंने बहुत 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 बड़ा योगदान छोड़ा इस मैच पर। और सबसे बड़ी बात, वो युजवेंद्र चहल से आगे बढ़कर इंडिया के सबसे सफल, द मोस्ट सक्सेसफुल टी20 आई बॉलर आज अर्शदीप सिंह ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कायम किया। सो लवली टू सी कि 2.5 साल के अंदर ये लड़का कहां से कहां आया। होपली वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसी बॉलिंग करेंगे, और हो सके जब इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड टूर के लिए एक टीम चुना जाएगा टेस्ट टीम के लिए, तो उसमें अर्शदीप सिंह भी साबित होंगे। सो ओवरऑल अ वन साइडेड facile match. There was entertainment thanks to the brilliance of Arshdeep and India's 3 spinners, mainly Chakravarti and Akshar Patel. And then when the openers, once the openers departed, I mean once Sanju Samson departed, the way that Abhishek Sharma ने बैटिंग करी, भाई मुझे डाउट्स थे इस लड़के को लेकर। यस, कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली थे, चेस के लिए ड्यू फैक्टर रहा, लेकिन जो करारे शॉट्स मारे, मैंने क्या कहा था आपसे प्रीव्यू शो पे आज कि अगर मार्क वुड और आर्चर पेस के साथ सही सही लाइन लेंथ नहीं ढूंढ पाएंगे तो अभिषेक शर्मा आपको बाउंड्री पार करेगा लेग साइड पे, और वही हुआ। सो यस,
A rather facile one-sided win for India. They're one up, but there are still 4 matches left to go.